Hello everyone. So our next chapter is chapter number 13, knowing the we can only see places that are nearby. The earth is very huge. To help us to learn about it, we have globes and maps. So हम अपने नियर बाय प्लेसेस ही देख सकते हैं, लेकिन अर्थ इतनी ह्यूज है कि उसके बारे में और जानने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? ग्लोब्स एंड मैप्स की. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोब. A globe is a model of the earth. It is useful because it shows what the earth actually look like and where the land and water are on the earth. We can spin a globe which help us to understand how the earth also spin. So this is a picture of globe. ये बिल्कुल अर्थ का ही मॉडल होता है और इससे हमें पता लग जाता है कि अर्थ में किस किस जगह पर लैंड एरिया है और किस किस जगह पे वाटर एरिया है. और इसको हम स्पिन भी कर सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं, जिस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट करती है. इसमें आपको दे रखा है सैटेलाइट पिक्चर ऑफ द अर्थ और अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. यू कैन सी इंडिया इन बोथ दीज पिक्चर्स. ये देखिए, यहाँ पे इंडिया शो किया हुआ है ग्लोब में और यहाँ पे पिक्चर में, अर्थ की पिक्चर में, एंड यहाँ पे ग्लोब पर. नेक्स्ट वन इज़ मैप. Globe are not easy to carry from place to place, so we have maps. These are special drawings of different parts of the earth. Maps are flat and can be carried around easily. They can show the whole earth or parts of it. Maps give more information than a globe. So globes को हर जगह लेकर जाना ईजी नहीं होता है. तो इसलिए हमारे पास क्या है? मैप्स जो हैं वो एक स्पेशल ड्राइंग होती है जिसमें अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स शो किए होते हैं एक पेज के ऊपर. इसीलिए इसको कहीं पर भी लेकर जाना भी बहुत इजी होता है. और मैप्स में ग्लोब के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन एज़ कम्पेयर टू ग्लोब इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा दी होती है मैप्स में. No interesting facts about a place like whether it has mountains, rivers, or the sea nearby. Find a place, get special information such as how rain a place get or what road is it has. इस तरीके से ये आपको वर्ल्ड मैप दे रखा है जिसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस शो किए हुए हैं. नेक्स्ट इज many maps of the different parts of the earth are put together in all books called an atlas. A map is different from a photograph. So एक ऐसी बुक होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स होते हैं अर्थ के अलग अलग पार्ट से रिलेटेड. सारे मैप्स होते हैं उसके अंदर, तो उस बुक को बोला जाता है एटलस. और मैप जो होता है वो पिक्चर से डिफरेंट होता है. जैसे कि इसमें आपको बुक में दे रखा है अ फोटोग्राफ ऑफ एन एरिया एंड अ मैप ऑफ द सेम एरिया. Look at these two pictures, a photograph and a map. The photograph show two village, fields, a road and tree, and find the places that are labeled in the photograph in this map of the same area. So photo से map बहुत different होता है, but places को find करना map में easy होता है. Just as your sheet of paper has a grid, experts have drawn lines on maps and globes to form grids. These help us to find places easily. Look at the globe or a map to see the grid of lines. The earth does not actually have lines on it, these are just imaginary lines. Some of these imaginary lines have special names. The line around the center of the earth is called equator. According to this, इस तरीके से ग्लोब्स एंड मैप्स पे ग्रिड्स बने होते हैं लाइंस के. और जो बिल्कुल बीच में लाइन होती है एक इमेजिनरी लाइन है. एक्चुअल में अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ये सिर्फ ग्लोब और मैप पे ही होती हैं. और जो बिल्कुल सेंटर में लाइन शो की हुई है इसको बोलते हैं इक्वेटर. टू हेल्प अस find places in maps, there is an index at the end of the atlas. In an index, the names of the places are in alphabetical order. इस तरीके से इंडेक्स भी मैप में गिवन होता है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से प्लेसेस के नाम मेंशन्स होते हैं और उनके ऊपर उनका ग्रिड का नंबर भी होता है कि ताकि ईज़िली हम उस प्लेस को फाइंड कर सकें.
फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैप में आपको शो किया हुआ है, जो पीछे इंडेक्स में प्लेसेस थे उन प्लेसेस को यहाँ इस मैप में शो किया हुआ है. Next topic is the four main directions. For us to understand maps better, we also need to know the special words that are also called directions. The four main directions are north, south, east, and west. This is how you can tell where they are. So, east, the sun rises in the sky early in the morning. The direction in which it rises is called east. जहाँ से सूरज निकलता है वो डायरेक्शन होती है ईस्ट. द सन हेल्प अस टू नो वेयर ईस्ट इज. सो सन की हेल्प से हमें पता लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है. वंस यू नो वेयर ईस्ट इज़ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस टू. अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन के बारे में पता चल जाए तो आप इजीली अदर डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक वेस्ट, गो आउट इनटू द ओपन अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टैंड विद योर आर्म्स स्ट्रेच sideways. Turn until your right hand is pointing toward the rising sun. It is pointing to the east. Your left hand will point west. So, जिस साइड से सनराइज हो रहा है वो साइड होगी ईस्ट और उसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी वेस्ट साइड. नेक्स्ट इज नॉर्थ. व्हेन योर राइट हैंड इज टुवर्ड द ईस्ट, जो आपका राइट हैंड ईस्ट साइड पे होगा, इन फ्रंट ऑफ यू विल बी नॉर्थ. तो आपके सामने वाली जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ. In south, when your right hand is pointing east, the direction behind you is south. और अगर आपका राइट हैंड ईस्ट की साइड है, आपके सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपके बिहाइंड में होगी साउथ डायरेक्शन. Every day the sun rises in the east and set in the west. So the sun is an important way to finding direction. In maps, the sign is used to show directions. The sign tell you that the top of the map will show the north of an area. सो मैप में इस तरीके का साइन होता है जिससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता चलता है. ईस्ट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मैप एंड द वेस्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. द कंपास. अ कंपास इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस. इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ. जो कंपास होता है उसमें जो डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं उससे ईजिली, और उसमें जो नीडल होती है वो ऑलवेज टूवर्ड्स की तरफ होती है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करती है. इट वॉज इन्वेंटेड मैनी हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो एंड हेल्प ट्रैवलर्स सच एज सेलर्स टू ट्रैवल इन द राइट डायरेक्शन. सो इससे कंपास से जो सेलर्स होते हैं उनको अपने ईजी होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में. जब वो सेल कर रहे होते हैं किसी शिप में तो उनको ईजी रहता है. द फोर डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ द कंपास. यहाँ पे आपको पिक भी दे रखी है कंपास की. द ग्लोब, maps and direction all help us to understand and know the earth better. Later you will learn more about to read and understand maps. So इस चैप्टर में आपको पता चला कि किस तरीके से हम ग्लोब पे एंड मैप्स पे डायरेक्शंस को और प्लेसेस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं.